Very good morning, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry by Sanjay Roy. Dear friends, we can start alcohol phenol ether. Now here we can complete it up to reaction of alcohol where breaking of OH bond can takes place. Right? Reaction with hydrogen halide, that is HX. Right. Now, let's see here. Hydrogen halide means what? And what are the different type of hydrogen halide? So, HX are nothing but it may be X may be fluorine, then it is hydrogen fluoride. If X is chlorine, that is HCl, HBr, and even HI. So these are the different type of hydrogen. We can say that halide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide, and hydrogen iodide. Right? We generally use these three for the reaction. This one we cannot use because it can produce explosive reaction. Right? Now, next, what will be the reactivity order for hydrogen halide? So, if we consider reactivity order, so the reactivity order of hydrogen halide, most reactive is the HI, then HBr, then HCl. Now, why the reactivity order of HI is more compared to HBr, HBr is more compared to HCl. Now, let's see the size of the all these three, hydrogen iodide, hydrogen bromide and hydrogen chloride. इन सबका size अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ variance आता है. Now, the size of hydrogen is always same. Suppose this is the hydrogen, the size of hydrogen is always same. It cannot change. But down the group, size of halogen continuously increases. So if we consider size of the iodine, iodine is a having bigger size because down the group size increases because number of shell increases. Now we just take hydrogen bromide, suppose the size of hydrogen bromide, and we just take size of hydrogen fluoride. So if you see the bond length, you can observe that down the group bond length decreases and if from HI to HBr to HCl, right? This is the HI, HBr and HCl. You observe that HI having greater bond length compared to HBr, HBr having greater bond length compared to HCl, and we know that as bond length increases, bond strength decreases. जितना bond length बढ़ेगा उतना bond का strength क्या होगा, कम होगा, उतना जल्दी bond क्या होगा तुम्हारा break होगा. And that's why सबसे जल्दी कौन सा bond break होगा, HI, because it having larger bond length. हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, HI, then HBr, देन HCl. एक काम करो, एक छोटी सी लकड़ी लो, राइट, एकदम छोटी सी, उसको तोड़ने की कोशिश करो, इट कैन नॉट ब्रेक इजीली. बट वही अगर तुम लोग बड़ी लकड़ी ले रहे हो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और बड़ी ले लो जल्दी ब्रेक हो जाएगा. मींस एज बॉन्ड लेंथ गोज ऑन इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ गोज ऑन क्या होगा, decreases, and hence if HI bond can break, it can I minus can attack on this alcohol, and that's why reactivity क्या होगा यहाँ पे from HI to HBr, HBr to HCl continuously decreases. Right now,
If reactivity decreases, means least reactive hydrogen halide can require some initiator to proceed the reaction, and hence when we undergo reaction of hydrogen chloride, it require catalyst. क्या लगेगा वहां पे? Catalyst. It require extra catalyst for the effective reaction. Now let's see how reaction can be proceed here. Right. Now, after the reactivity of the HH, we must know the reactivity of alcohol. So, second we can take reactivity of alcohol. Right. Alcohols की reactivity क्या होगी? तो we know that tertiary alcohol is more reactive compared to secondary. Secondary is more reactive compared to primary. Right. We just draw the general structure of tertiary alcohol. This is the general structure of tertiary alcohol. Here RCRHOH, the general structure of secondary alcohol, and here RCHHOH. It is the general structure of primary alcohol. So the reactivity of alcohol is tertiary is more reactive compared to secondary. Secondary is more reactive compared to primary. मींस अगर हम लोग यहाँ पे सबसे फास्ट रिएक्शन किसके बीच में होगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसके बीच में होगा? इफ योर अल्कोहल इज टर्शियरी एंड अल्काइल हैलाइड इज HI, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड इज HI, तब रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा? फास्ट होगा. सबसे स्लो रिएक्शन किसके बीच में होगा? इफ योर अल्कोहल इज प्राइमरी एंड हाइड्रोजन हैलाइड इज HCl, एंड दैट्स व्हाई व्हेन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल with the hydrogen halide can require catalyst. हमने यहाँ पे, अगर हमको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने लुकास रिएजेंट के बारे में पढ़ा था. प्राइमरी अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करता है, तो वहां पे क्या लग रहा था? इट कैन रिक्वायर कैटलिस्ट. राइट. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ ईच. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ hydrogen chloride, alkyl chloride, formation of alkyl chloride, that is RCl. right. अब इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे? right, which catalyst we can use to prepare this? so यहाँ पे अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो कौन सा कैटलिस्ट लगता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? जनरल रिएक्शन लेंगे. सपोज दिस इज अल्कोहल, ये हमने कोई तो भी क्या ले लिया? अल्कोहल. तो अल्कोहल को मुझे किसके साथ रिएक्ट करना? अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए तो HCl के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. नाउ हियर वी जस्ट रिक्वायर कैटलिस्ट, दैट इज जिंक क्लोराइड, ZnCl2. तो हियर वी कैन टेक HCl and ZnCl2. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट. इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट. नाउ हियर which reaction can undergo? it can undergo NSR reaction, means nucleophilic substitution reaction. इस reaction में क्या होता है? now when we dissociate HCl, it can produce H plus and Cl minus. now this Cl minus can attack on this OH minus here, and यहाँ से क्या हो जाएगा? OH minus बाहर चले जाएगा. क्या मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? RCl प्लस क्या मिलेगा? H2. इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्काइल क्लोराइड को फॉर्म कर सकते हैं by using that reaction. right. now we just take the example, एक एग्जांपल प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शियरी का. right. now let's take one example. suppose we just take primary alcohol. here we can use CH2OH, that is propyl alcohol. right. why it is called primary? you know, because OH group attached to the primary carbon. so this is the example of primary alcohol, propanol oil. right. so when it reacted with HCl, it require ZnCl2. right. हमने लुकास रिएजेंट डाला, but still the reaction cannot proceed, because अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम है. बराबर है, हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा था. एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहल भी लीस्ट रिएक्टिव. तो अगर मान लो दो आलसी लोग हैं तो उनसे कोई भी काम नहीं होने वाला है. तो हम लोग उस समय में क्या करेंगे? हमको उनको इनिशिएट करना पड़ेगा. हमको क्या करना पड़ेगा? उनको इनिशिएट करना पड़ेगा. मींस to initiate the reaction we must require catalyst. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
कैटलिस्ट यूज करेंगे। नाउ इन दिस केस द कैटलिस्ट इज हीट। ZnCl2 तो है, लेकिन इसको इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको उस रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा, और आफ्टर हीटिंग द रिएक्शन कैन कंटिन्यू। यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस H प्लस, Cl माइनस अटैक वॉरियर, OH माइनस यहाँ से बाहर जाएगा, OH जाएगा तो OH माइनस हो जाएगा, इट रिएक्ट विद H प्लस, और क्या होगा तुम्हारा कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 Cl plus H2O. Now, if we take the example of one of the example of secondary alcohol, ये हम लोग एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ना इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, राइट। व्हेन इट रिएक्टेड विद HCl, यार कैटलिस्ट तो लगने ही वाला है, कैटलिस्ट हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ we just see the reactivity order. Secondary alcohol is a more reactive compared to the primary alcohol. यहाँ पे secondary alcohol क्या रहेगा, it is a more reactive compared to the primary alcohol. CH3 CH2 CH2Cl plus H2, right? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं plus H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक चीज क्या लगेगा, हमको रिएक्शन को हीट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हीट नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट CH3CH, सेम रिएक्शन करो, क्या करना है, OH को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे Cl लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, Cl प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, H2। तो यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ है। नाउ यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, CH3C CH3 CH3OH. What is the name? 2-methyl propane 2-ol. क्यों, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, दैट्स इसको क्या बोलेंगे, 2-methyl propane 2-ol, राइट। व्हेन इट रिएक्टेड विद HCl, नाउ यहाँ पे अगर कभी-कभी बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन होता है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ZnCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, here also Cl minus H plus Cl minus अटैक करेगा, OH को बाहर कर देगा, तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट CH3C, let's see, CH3Cl plus क्या मिलेगा, H2। तो यहाँ पे क्या मिला, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मिला। Now all these three reaction common क्या है, Cl is replaced, OH is replaced by Cl, तो हमको क्या मिल रहा है, अल्काइल क्लोराइड, बट the time required to form alkyl chloride is different। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा, ये क्या होगा, स्लो होगा, और ये क्या होगा, वेरी स्लो। ये इतना स्लो है कि जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे रिएक्शन कैरिड आउट नहीं करेंगे। तो यही टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट भी बोला जाता है, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो हमने कल देखा था, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड फॉर्म किया है, अब अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये रिएजेंट को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसके भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, right? So next, formation of alkyl bromide. How will you prepare alkyl bromide? तो सेम है, बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, HCl को रिप्लेस करके क्या लगाना है, HBr, वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो लेट देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पे नाउ एक चीज ध्यान में रखो, फॉर दिस हमको क्या चाहिए, यहाँ पे HBr चाहिए, क्या चाहिए हमको, यहाँ पे HBr की जरूरत पड़ेगा, बट HBr ये क्या रहता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है, तो हम लोग उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हमको उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सीटू जनरेशन हमको करना पड़ सकता है। हमको क्या करना पड़ेगा, इन सीटू जनरेशन। अब इन सीटू जनरेशन कैसे होता है ये हमको यहाँ पे देखना है। तो हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड, इन सीटू का मतलब पता है, मींस द रिएजेंट व्हिच कैन जनरेट ड्यूरिंग रिएक्शन, the reagent which can generate during reaction is called as in situ generation। तो हमको इसको क्या करना है, in situ generation। नाउ जब भी हमको HBr को प्रिपेयर करना है, we can prepare by using sodium iodide and phosphoric acid, or we can also use sulfuric acid,
राइट। तो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, तो HBr को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सोडियम आयोडाइड हम लोग यूज कर सकते हैं, प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर हम लोग सॉरी NaBr यूज करेंगे हम लोग, सोडियम ब्रोमाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, और हम लोग इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखो प्रिपरेशन कैसे होगा। अब यहाँ का जो Br है यहाँ के H के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो H और Br मिलके क्या निकालेंगे यहाँ पे HBr प्लस, बचेगा क्या, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किसने किया, सोडियम ने, तो क्या बचेगा NaHSO4। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम लगाना है और HBr वहां से बाहर निकालना है। तो दिस टाइप ऑफ जनरेशन इज कंसिडर्ड एज इन सिटू प्रिपरेशन, राइट। अब हम लोग आगे रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, CH3CH2H, हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल। व्हेन इथेनॉल रिएक्टेड विद HBr, नाउ अब यहाँ पे तुमको एरो के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे एरो के ऊपर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NaBr प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे H2SO4। ये किसके लिए, बिकॉज इससे क्या होता है, हमारा इन सिटू जनरेशन होता है किसका, HBr का। हमने भी रिएक्शन देखा था कैसे होता है। अब वंस इन सिटू जनरेशन Br का हो गया, आगे रिएक्शन सेम है, H प्लस Br माइनस अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्लस H2O, क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्लस H2O। अपने को यहाँ पे क्या मिला, प्रोडक्ट। इस प्रकार से हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लो हमको अगर सेकेंडरी बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल, ब्यूटेन टुऑल, व्हेन रिएक्टेड विद HBr, यहाँ पे क्या आएगा, NaBr प्लस H2SO4, यहाँ से क्या निकलेगा, HBr बनेगा, हमको पता है कैसे बनेगा। अब फिर ये Br माइनस H प्लस, Br माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, OH यहाँ से बाहर, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 CH Br CH3 प्लस यहाँ से क्या बाहर जाएगा, H2O। तो टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन ले लो, CH3 CH2C CH3 टर्शियरी कार्बन को H लगा दो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल व्हेन इट रिएक्टेड विद HBr। नाउ यहाँ पे इन सिटू प्रिपरेशन होगा, क्या यूज कर सकते हैं, NaBr प्लस H2SO4, यहाँ पे क्या होगा, इसका वापस से क्या होगा, इन सिटू जनरेशन, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इन सिटू जनरेशन, यहाँ पे क्या आएगा, H प्लस Br माइनस, Br माइनस आएगा, O को रिप्लेस कर देगा, क्या मिलेगा, CH3 CH2C CH3Br प्लस यहाँ से बाहर क्या जाएगा, H2O। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे भी अगर रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, थर्ड वन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट वन। बट फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे हमको ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पता चलता है, राइट। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू द अदर रिएक्शन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे तुमको क्या करना है, एक चीज क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक चीज तुमको क्या ध्यान में रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करना है। बिकॉज एक चीज ध्यान में रखो, अगर जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे थे, ये सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर सकते हैं, बट फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल वी कैन यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका रीजन क्या है, व्हाई वी कैन रिक्वायर द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक्ट होता है, इट कैन एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या एक्ट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या कर सकता है,
रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के अल्कीन में भी कन्वर्ट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई एंड वी नो दैट द टेंडेंसी टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन इज ग्रेटर फॉर टर्शियरी सेकेंडरी, राइट। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल अगर उसको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है रादर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हमको अल्काइल ब्रोमाइड मिलने की जगह हमको क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। दैट्स व्हाई जब भी तुम लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन कर रहे हो, वी मस्ट यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आपको यूज नहीं करना है। Now let's take one example where we can use concentrated and dilute. क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग उसको देखते हैं। Now let's see. हमने एक ही रिएक्शन लिखा है, इसको हमने दो अलग-अलग रिएजेंट लिया है। Here we can take concentrated, here we can take dilute. Right? अब यह अल्कोहल कौन सा है तुम्हारा, सेकेंडरी अल्कोहल है, और हमने देखा है कि in presence of concentrated sulfuric acid alcohol can undergo elimination reaction. कौन सा elimination करता है, बीटा elimination and form alkene. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन में। नाउ इट कैन एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, मींस यहाँ से H+ आयन बाहर गया, यहाँ से ये बॉन्ड गया, मतलब OH- गया, मींस दिस ऑक्सीजन कैन टेक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद अस, दैट्स व्हाई इट कैन OH-, यहाँ से क्या बाहर गया H2O। अब यहाँ पे बचा क्या तुम्हारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, बराबर है। तो यहां पे क्या हुआ, एलिमिनेशन, here it can undergo elimination reaction। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा, बट अगर उसके जगह हम लोग डाइल्यूट यूज करते तो क्या होगा, डाइल्यूट क्या करता है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन करता है, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HBr, और HBr बनेगा H+Br-, ये जाएगा यहाँ से ये। तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, प्लस H2। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम लोगों को अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है और अगर हम लोग इन सिटू प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग NaBr एंड सल्फ्यूरिक एसिड, for primary we can use concentrated, but for secondary and tertiary we always use dilute sulfuric acid. So just like formation of HCl, HBr, यहाँ पे formation of क्या होता है तुम्हारा, formation of alkyl chloride, alkyl bromide, and lastly हम लोग देखते हैं formation of alkyl iodide। तो यहाँ पे क्या होगा वो चीज हमको यहाँ पे देखना है। So अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड वी रिक्वायर हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ रिएजेंट। नाउ जस्ट लाइक HBr, HI इज आल्सो अनस्टेबल। HI भी क्या रहता है, अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल HI का भी प्रिपरेशन कैसे होता है, इन सिटू जनरेशन होता है। इन सिटू प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, तो वेयर वी कैन यूज सोडियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। नाउ दिस फॉस्फोरिक एसिड मस्ट बी 95% concentrated phosphoric acid we can use। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस यहाँ पे H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, Na प्लस H2SO4 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सब हम लोग रिएजेंट यूज करके हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, HI को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, इन सिटू, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसके भी रिएक्शन देखते हैं, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के साथ कैसे ये बिहेव करता है उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ओके। Now take these three example. Here we can take one primary, one secondary, and finally one tertiary. Right? So this is the primary alcohol, secondary and tertiary, where we can react it with HI. HI को prepare कैसे कर सकते हैं? In situ के लिए हम लोग क्या use करते हैं यहाँ पे preparation के लिए? हम लोग NaI plus क्या use करते हैं? H3PO4 हम लोग यहाँ पे use करते हैं. Right? Now अब इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली H plus and I minus, H plus and I minus, H plus and I minus। इस रिएक्शन में क्या होगा, I minus OH को रिप्लेस करेगा,
I माइनस OH को रिप्लेस करेगा I माइनस OH को। बस तुमको बाकी कार्बन स्केलेटन एज इट इज रहेगा, तुमको बस OH निकाल के क्या लगाना है, आयोडाइड। तो इसको ऐसे जैसे के वैसे लिख दो। क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस H2। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH CH3 CH CH3I प्लस H2। इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2C CH3 CH2 CH3I प्लस H2O। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से अल्काइल हैलाइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग अल्काइल क्लोराइड को बना सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड को बना सकते हैं, एज वेल एज अल्काइल आयोडाइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने पूरे एग्जांपल देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वी आल्सो सी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखे अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड की HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। वी आल्सो सी द रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू प्राइमरी, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारा पहला रिएक्शन खत्म हुआ, जहां पे हमने क्या किए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, वेयर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। In next we can see the preparation of alkyl halide। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की जगह हम लोग दूसरे रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। we can also use phosphorus halide as well as thionyl chloride for the preparation of same। उसके भी हम लोग रिएक्शन देखेंगे, उसके भी हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखेंगे formation of alkyl halide by using phosphorus halide and thionyl chloride। Thank you very much. If you like my video, please subscribe my channel, that is Gurukul Academy of Chemistry by Sanjay Roy। You can share this with your friends also, right। हम लोग वीडियो कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे। अगर तुम लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये चीज का ध्यान रखो, राइट। ओके, सो वी कैन सी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए see you, stay safe and stay well। Thank you।